Hello everyone. Welcome back again. We are going to start with the part third of motion chapter. So in the part one and part two, what we have discussed mainly. So हमने क्या देखा था? हमने सबसे पहले motion से शुरुआत किया था. Motion हमने study किया that whenever an object changes its position with respect to time, what happens, or with respect to a reference point, the object is said to be in motion. Then we understood about distance and displacement. Okay, distance was the actual length covered by the body, whereas displacement is basically the shortest straight line distance between initial and final point and in a specific direction. उसके बाद पार्ट टू में हमने क्या सीखा था? पार्ट टू में हमने सीखा स्पीड के बारे में कि एक आइडिया देता है कि कितना फास्ट और कितना स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए थे. नाउ इन दिस पार्ट वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. Okay, two very important concepts in the physics, right? The entire physics chapter or the entire physics concepts, they will be using velocity and acceleration on a very good scale. Okay, so one by one हम लोग take up कर रहे हैं इसको. So let's begin with a very simple note. जब हमने speed किया था तो speed में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि that we talk about how it basically gives you the idea about how fast or slow the body is moving, isn't it? That was basically speed, right? Then speed हमें specifically क्या नहीं बताता, हमें direction नहीं बताता. तो अगर हमें एक बॉडी का एग्जैक्ट पोजीशन यानी कि बॉडी की डायरेक्शन और साथ में इसकी स्पीड भी चाहिए तो मुझे एक नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी. उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है वेलोसिटी. सो व्हाट इज़ आई मीन बेसिक reason for introducing velocity is that velocity basically gives you the exact position or the exact direction and as well as the speed of the moving body. So how do you define a velocity? Velocity is defined as distance traveled by a body per unit time in a given direction. So if I write it up in the mathematical form, what I get, velocity is equal to distance traveled in a given direction divided by time taken. अब एक important सा logic है, when you travel distance or when you cover distance in a given direction, that is known as displacement, है ना? So distance traveled in a given direction को मैं displacement भी बोल सकता हूँ. तो velocity can also be termed as displacement upon time. Now this is important. जब आपने स्पीड डिफाइन किया था, स्पीड क्या था? v इज इक्वल टू एस अपॉन टी. दैट एस मतलब डिस्टेंस. अब यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हालांकि हम जब लिखते हैं दोनों को सिमिलर तरीके से ही लिखते हैं वहाँ पे, राइट? सो वेलोसिटी is also defined as displacement produced per unit time. I hope you have got it. So v is equal to s upon t is the same formula, right? तो अभी हमने कवर किया, क्या कवर किया कि जो स्पीड है, स्पीड हमें सिर्फ क्या बताता है? सिर्फ एक आइडिया देता है कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो द बॉडी इज मूविंग है. इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट डायरेक्शन. बट वेयर एज in order to find out the exact position, or we call as the direction and the speed, we need to go for a next physical quantity, that is velocity. So what is velocity? Velocity is defined as distance traveled by a body per unit time in a given direction. ध्यान दीजिएगा, velocity is basically distance traveled by a body per unit time in a given direction. And you know that distance traveled in a given direction is also known as displacement. So I can write velocity is equal to displacement upon time. Okay, so there are two different definitions of velocity. Velocity is also defined as displacement produced per unit time. So v is equal to again s upon t, जहाँ पे v velocity है, s displacement है और t time है आपका. Now अगर मैं SI यूनिट देखूँ velocity का, SI यूनिट का velocity is absolutely the same as that of speed, मीटर पर सेकेंड. बस फ़र्क सिर्फ कितना आता है? इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या रेफ़र करना होता है? डायरेक्शन भी रेफ़र करना होता है. बिकॉज velocity is something, okay, velocity is something which comes with magnitude as well as direction. Okay, so since it is having magnitude as well as direction, so we say that velocity is a vector quantity. Okay, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, स्पीड हमें क्या दे रखा है? 25 किलोमीटर्स, विच इज़ फेयर इनफ. लेकिन जब मैं वेलोसिटी लिखूँगा, हाउ वुड आई राइट 25 किलोमीटर्स ड्यू साउथ? यहाँ पे मैंने किसको रेफ़र किया है? यहाँ पे मैंने डायरेक्शन को रेफ़र किया है. ओके, सो जब मैं स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन दे देता हूँ, दैट बिकम्स बी वेलोसिटी.
ओके। एंड समटाइम्स लॉजिकल बिल्डअप के लिए और समटाइम्स वन मार्कर के लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं वो। ना व्हाट इज़ दैट क्वेश्चन? व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? इट इज़ नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वही तुम्हारा वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। ओके। एंड देन विल मूव ऑन टू कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सिंपल एज दैट। एवरेज वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम। ओके यहाँ पे हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स यू दी एवरेज वेलोसिटी। तो अभी हमने क्या कवर किया? अभी हमने ये कवर किया कि जो एसआई यूनिट है वेलोसिटी का वो मीटर पर सेकेंड है, जिसको आप ms-1 के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके प्लस साथ में क्या देना पड़ता है उसके साथ? डायरेक्शन। अब क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गए, इसलिए वेलोसिटी को मैं क्या बोलूँगा? एक वेक्टर क्वांटिटी बोलूँगा। ओके जब आप स्पीड को डिफाइन करते हो या रेफर करते हो आपने सिंपल मैग्नीट्यूड लिखा, लेकिन जब आप वेलोसिटी को रेफर करते हो तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या देना पड़ता है? डायरेक्शन भी देना पड़ता है। ओके एंड समटाइम्स फॉर द लॉजिकल बिल्डअप दे आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड हेंस देन वहाँ से हमने क्या कवर किया? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम, इन शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन कवर किया था, यूनिफॉर्म मोशन क्या कवर किया था? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। एंड व्हेन एवर अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब उसी कॉन्सेप्ट को हमें रिलेट करना है किसके साथ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ओके जब आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे ना आपको सिमिलैरिटी नज़र आएगा। व्हेन अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। नाउ ये जो आपका जो कीवर्ड्स है स्ट्रेट लाइन एंड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ओके ये दोनों किसको रेफर कर रहे हैं? बेसिकली इट शोज दैट वी आर रेफरिंग टू वेलोसिटी। सो अगेन when a body in a straight line and in a specific direction covers equal distance in equal interval of time, the body is said to have uniform velocity। सिंपल सा लॉजिक है। मैंने दो कीवर्ड्स क्या क्या यूज़ किया है? एक तो मैंने यूज़ किया है स्ट्रेट लाइन और दूसरा क्या यूज़ किया है? स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में होगी और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगी और वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ओके सो यूनिफॉर्म मोशन के साथ हमने दो कीवर्ड्स और ऐड कर लिए। क्या क्या वर्ड्स ऐड किए? मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, because velocity is displacement and displacement means straight line and a specific direction। समझ में आ गया आपको? ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होता है? जब एक बॉडी अगेन स्ट्रेट लाइन और स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगी और अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तब द बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमने वही की टर्म, अब क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट यूज़ कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन एंड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसलिए व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बेसिकली अगर आप देखोगे यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी डेफिनेशन सेम है, बस दो एक्स्ट्रा कीवर्ड्स आ गए। क्या क्या आ गए? इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन covers equal distance in equal interval of time, that is uniform velocity। On the other hand, when I talk about a body in a straight line and in a specific direction covers unequal distance in equal interval of time, the body is said to have non-uniform velocity। Okay so this way we complete that particular portion। अब एक इम्पॉर्टेंट सा लॉजिक है जो हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। अगर मान लो, नाउ आई एम कमिंग टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सो अगर मुझे किसी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक, आई कैन चेंज इट्स वेलोसिटी बाय चेंजिंग द स्पीड, और दूसरा स्पीड को कांस्टेंट रखकर अगर मैं डायरेक्शन को चेंज करता हूँ तब भी मेरी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सो आई हैव टू वेज टू गो अबाउट। इफ़ आई वांट टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी देन आई कैन गो बाय टू वेज। वन, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, एंड सेकेंडली बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी कीपिंग द स्पीड कॉन्स्टेंट। और ऑब्वियसली बात है, अगर स्पीड और डायरेक्शन दो साथ साथ में चेंज होता रहता है तब भी मेरा वेलोसिटी बदल जाएगा। ओके एंड यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आता है कि स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा इक्वल नहीं होता, मैग्नीट्यूड में हमेशा अलग अलग आएगा, क्योंकि यू नो स्पीड डजंट यूजेस डायरेक्शन वेयर एज वेलोसिटी यूजेस डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन हो सकता है कांस्टेंट हो और हो सकता है कांस्टेंट ना भी हो। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक कंडीशन दिया है
कि स्पीड और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम हो सकती है, बट एक कंडीशन होगा उसके लिए. द स्पीड एंड वेलोसिटी कैन हैव सेम मैग्नीट्यूड बट देयर इज अ कंडीशन फॉर इट. नाउ व्हाट इज अ कंडीशन? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी एंड दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन. वो स्ट्रेट लाइन का लेंथ है 100 मीटर्स और ए से बी तक जाने के लिए मेरे को लगता है 50 सेकेंड्स. यानी कि मुझे डिस्टेंस भी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है. अगर मैं ए टू बी की बात करूँ, मेरा डिस्टेंस भी 100 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर होगा. क्यों? क्योंकि ए टू बी एक स्ट्रेट लाइन है और ए और बी फाइनल और इनिशियल पॉइंट को कनेक्ट भी कर रहा है. सो दैट मीन्स इन दिस केस माई डिस्टेंस इज़ 100 meters as well as my displacement is also 100 meters. ओके ओके, कंडीशन क्या क्या है? एक तो ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है. देखो स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है? द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. नाउ इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ स्पीड और इफ आई पुट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस का जगह 100, टाइम का जगह 50. नाउ माई स्पीड इज कमिंग आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड. ऑन द अदर हैंड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, डिस्प्लेसमेंट भी 100 है मेरा यहाँ पे, टाइम 50 है, तो दिस वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट. बस साथ में क्या ऐड ऑन कर दिया? डायरेक्शन. तो अगर आप देखोगे स्पीड की वैल्यू भी 2 आ रही है, वेलोसिटी की वैल्यू भी 2 आ रही है. ये तभी पॉसिबल है जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है. सो दैट इज ओनली कंडीशन फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी टू हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम वैल्यू. व्हाट इज द कंडीशन? द बॉडी शुड बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन and in a specific direction. Now same goes for average speed and average velocity. How can you prove average speed is equal to average velocity? Only when the body is moving in a straight line and in a specific direction. Okay, तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता रखा है. So if a body is moving in a straight line and in a specific direction, the magnitude of speed and velocity can be same. Okay, okay. और उसी के जस्ट साइड में मैंने एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे रेफ़र किया है कि एवरेज स्पीड अगर गाड़ी मोशन में है, एवरेज स्पीड कैन नेवर बी ज़ीरो, कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो. अब ये क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किसको यूज़ कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है कब? अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर आपका सेम है. तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी ज़ीरो हो सकता है, वेलोसिटी ज़ीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो सकता है. तो आप लिंक करके चलिए, ठीक है. तो अभी हमने क्या कवर किया? अभी हमने ये देखा कि वेलोसिटी जो है वो दो तरीके से चेंज हो सकता है, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट. मतलब बेशक आप स्पीड को कांस्टेंट रखिए, अगर आप डायरेक्शन भी चेंज करते हो तो भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है. देन हमने एक कंडीशन देखा कि ज़रूरी नहीं है कि स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा सेम रहे. देयर इज़ अ कंडीशन फॉर इट. वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि अगर वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में हो और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में हो, तो स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू सेम हो सकती है. सो इफ़ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन and in a specific direction, then the magnitude of speed and velocity can be same. Now this is the very important point which is coming out from that particular concept. ठीक है. सो अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो, you go back, rewind it and then again you do it. Okay, and simultaneously you have to prepare the notes, then only you will be able to understand clearly. फिर हमने ये देखा कि एवरेज स्पीड अगर गाड़ी मोशन में है, अगर गाड़ी चल रही है, तो एवरेज स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, बट एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो सकता है. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किसको यूज़ कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है. क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर आपका ज़ीरो हो, मान लो एक गाड़ी ने ए पॉइंट से शुरू किया और वापस ए पॉइंट में ही आ गया, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया. डिस्प्लेसमेंट कहाँ यूज़ हो रहा है? वेलोसिटी में, यानी कि वेलोसिटी ज़ीरो हो गया. और वेलोसिटी कहाँ यूज़ हो रहा है? एवरेज वेलोसिटी में. तो उसके वजह से एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गया. इवन दो गाड़ी चल रही थी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है. कंडीशन इज़ द डिस्प्लेसमेंट इज़ कमिंग आउट टू बी ज़ीरो. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज़ अबाउट एक्सेलरेशन. नाउ हम लोग डेली लाइफ में अगर आप देखें, अगर आप ऑब्वियसली यू मस्ट हैव ट्रैवल्ड इन अ कार. नाउ देयर आर 3 pedals in a car, or for that matter in any vehicle. The first pedal is accelerator, the second pedal is brake, and the third pedal is clutch. So let's forget about clutch now. Let's focus on accelerator and brake. So जब कोई पर्सन एक्सेलरेटर पे पैर रखता है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ती है. और जब कोई ब्रेक पे अपना पैर रखता है, व्हाट हैपेंस?
गाड़ी की वेलोसिटी धीरे होती है. सो ये जो वर्ड है ना वेलोसिटी बढ़ना, वेलोसिटी जब बढ़ती है उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी जब कम होती है उसको बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर डीसेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में न्यूमेरिकल के थ्रू बाद में स्टडी करेंगे. बट अभी सिर्फ फ़िलहाल आप ये समझेंगे कि जब अगर मेरी वेलोसिटी ओके अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है दैट मीन्स माई कॉन्सेप्ट इज़ एक्सेलरेशन, और अगर मेरी वेलोसिटी कम हो रही है दैट मीन्स माई कॉन्सेप्ट इज़ retardation. Okay, so if I'm increasing my velocity, that concept is acceleration. That means I am accelerating. And if I am reducing my velocity, that means I am retarding. और velocity कम होने का वजह क्या है? Because you are applying the brake. So let's one by one take up this concept. Let's focus on acceleration first. Now acceleration को करने के लिए हमें दो concept का करना बहुत ज़रूरी है. वो क्या है? एक है initial velocity जिसको हम u से रेफ़र करते हैं, और एक है फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v से रेफ़र करते हैं. इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या होता है? आपने रेस्ट से शुरू होने के बाद यानी कि गाड़ी चलाने के बाद जस्ट आफ्टर द स्टार्ट जो वेलोसिटी अटेंड होती है ना उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी. सो द इनिशियल वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी विच इज़ अटेन्ड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जस्ट शुरू होने के बाद जो वेलोसिटी अचीव होती है. और फाइनल वेलोसिटी क्या है? रेस्ट में आने से पहले यानी कि रुकने से जस्ट पहले वाली जो वेलोसिटी उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी. सो वेलोसिटी बिफोर कमिंग टू रेस्ट. अब उसका एक्सेलरेशन से क्या लेने देना है? बिकॉज मैंने आपको बताया था जब हम लोग कोई जर्नी में होते हैं हम लोग एंटायर जर्नी के लिए सेम स्पीड अप्लाई नहीं कर सकते. कहीं पे हमारी स्पीड बढ़ रही है, कहीं पे हमारी स्पीड कम हो रही है. ओके, सो पूरे जर्नी में आपने अपना स्पीड को कितना ज़्यादा और कितना कम किया, दैट इज़ द रेट विच इज़ गिवन बाय एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज़ बेसिकली डिफाइंड एज द रेट एट विच वेलोसिटी इज़ चेंजिंग. ये तो है बहुत लेमन सा डेफिनेशन, लेकिन जो आप स्कूल में करेंगे यानी कि आपको जब पूछा जाएगा वो डिफाइन एक्सेलरेशन, तब आप किसको डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम. टाइम के साथ साथ आपने कैसे कैसे वेलोसिटी को चेंज किया वो आपको कॉन्सेप्ट बताएगा एक्सेलरेशन. ओके, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया मैंने, चेंज इन वेलोसिटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी चीज़ का अगर हमें चेंज निकालना हो, ओके, फॉर दैट मैटर स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, विच एवर वे, कभी भी हमें चेंज निकालना हो हमेशा फाइनल को हम इनिशियल से माइनस करते हैं. तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कैसे आया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल साथ में डिवाइड कर देते हैं टाइम के साथ. सो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? फाइनल के जगह v रखा, इनिशियल के जगह u रखा और टाइम के जगह t. सो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी v माइनस यू डिवाइडेड बाय t. एंड एक्सेलरेशन मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, टाइम मतलब t. सो एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी v माइनस यू डिवाइडेड बाय t. क्योंकि अगर आप डेफिनेशन देखोगे एक्सेलरेशन क्या कह रहा है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, isn't it? So a is equal to v minus u divided by t. This is your formula for acceleration. Okay? So just अभी हमने क्या देखा? इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिफाइन करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिफाइन करते हैं. u मतलब क्या होता है? द वेलोसिटी विच इज़ अटेन्ड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट. और फाइनल वेलोसिटी क्या है? द वेलोसिटी विच इज़ अटेन्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट. ओके, और एक्सेलरेशन क्या बताता है? एक आइडिया बताता है और ये बताता है कि किस रेट में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. So the rate at which velocity is changing, or to make it all more precise or to be more definitive, what we see is acceleration is defined as the rate of change in velocity with time. How do you say change in velocity? Final velocity minus initial velocity. Now rate of change in velocity means final velocity minus initial velocity upon time. So यहाँ से मिला v minus u divided by t. So acceleration is equal to change in velocity upon time, and hence v minus u divided by t. So a is equal to v minus u divided by t. Sometimes they ask you this question, state and derive acceleration. State and derive, तो statement तो हो गया मेरा ये, और derivation हो गया मेरा ये वाला steps, ये 3 steps. ओके, पहले लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, फिर लिखेंगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, एंड देन उसके बाद आप लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम विच गिव्स यू a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t. सो दिस वे द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड डिराइव कंप्लीट्स. ओके, अब अगर मैं SI यूनिट निकालने की कोशिश करूँ, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? मुझे पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू अपॉन टी, और v और u को अगर मैं क्लब कर दूँ उसका मतलब वेलोसिटी है.
ठीक है, वी और यू को अगर मैं क्लब कर दूँ, दैट इज़ वेलोसिटी. नाउ वेलोसिटी मीन्स मीटर पर सेकेंड एंड टाइम मीन्स सेकेंड. वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड है. मीटर पर सेकेंड को मैं लिखता हूँ मीटर पर सेकेंड, एम अपॉन एस, और इंटू एस टाइम का, एस इंटू एस हो गया स्क्वायर, और ये एस स्क्वायर जब ऊपर चला जाएगा तो एम एस -2 या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो देर आर टू वेज ऑफ राइटिंग इट. द एक्सेलरेशन SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज ms -2 और ms मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ध्यान दीजिएगा, स्पीड की SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड विद डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन का SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, राइट. अगर मैं बात करूँ स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी की, तो एक्सेलरेशन जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. क्यों भैया, एक्सेलरेशन किसको यूज़ कर रहा है, वेलोसिटी को, और वेलोसिटी क्या यूनिट है, वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी किसको यूज़ कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो हर चीज़ कनेक्टेड है. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को यूज़ कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हुआ. एक्सेलरेशन वेलोसिटी को यूज़ कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी हुआ. सो आई हैव मिस दिस पॉइंट, आप लिखेंगे इसमें दैट एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. अब यहाँ पे मैंने एक नोट दिया हुआ है, इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या है, शुरुआत में भी सेम वेलोसिटी, एंडिंग में भी सेम वेलोसिटी. जब गाड़ी चल रही थी शुरुआत में सेम वेलोसिटी थी, और गाड़ी रुकने से पहले भी सेम वेलोसिटी थी, यानी कि पूरे जर्नी में मैंने एक्सेलरेटर पे पैर रखा ही नहीं, गाड़ी चल रही सेम वेलोसिटी पे. उस कंडीशन में क्या होगा, मेरी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहेगी. अगर मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डालूँ, a = v - u अपॉन टी, v और u क्योंकि सेम है तो a = v - v या u - u, दोनों की वैल्यू मुझे क्या देगी, अल्टीमेटली 0. तो अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हो, यानी कि शुरुआत में भी सेम वेलोसिटी, एंडिंग में भी सेम वेलोसिटी, यानी कि आपने एक्सेलरेशन किया ही नहीं, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू वहाँ पे क्या आ जाएगी, 0. So if a body moves with uniform velocity, the value of acceleration is coming out to be 0. That is why I've written there acceleration is 0 if the body moves with uniform velocity, right? So again, to sum up, SI unit of acceleration is meter per second square, and if a body is moving with uniform velocity matlab initial velocity and final velocity are same, right? So if the initial velocity and final velocity are same, acceleration is coming out to be 0. So acceleration is 0 if the body moves with uniform velocity, and acceleration is a vector quantity. Make sure you write that point as well. Okay, now moving on to the last concept, we have already discussed this. There is a concept of retardation. Now retardation मतलब क्या है, if the velocity is reducing. Okay, जब ब्रेक्स अप्लाई करते हो, जाहिर सी बात है वेलोसिटी कम होगा, और जब वेलोसिटी कम होगा उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिटार्डेशन. रिटार्डेशन को समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल इट एज डीसिलरेशन. ओके, बुक में आपको डीसिलरेशन से नाम मिलेगा, या फिर उसको दे ऑल्सो कॉल इट एज नेगेटिव एक्सेलरेशन. नाउ यू विल गेट टू नो वाई वी कॉल इट एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, जस्ट बिकॉज जरा इस वाले एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए. अ बॉडी इज सेड टू हैव रिटार्डेशन इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. जी हमने अभी देख लिया. फॉर्मूला क्या है हमारा, a = v - u अपॉन t. रिटार्डेशन का फॉर्मूला भी डिट्टो सेम है जो एक्सेलरेशन का है. देयर इज नो डिफरेंट फॉर्मूला फॉर रिटार्डेशन. द फॉर्मूला फॉर रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन इज सेम. आई एम रिपीटिंग अगेन, द फॉर्मूला फॉर रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन इज सेम. तो अब ये देखिए, मान लो मेरी फाइनल वेलोसिटी है 30 और मेरी इनिशियल वेलोसिटी रही है 60. जब गाड़ी शुरू किया था थ्रू आउट द जर्नी, इनिशियली मेरा 60 था, फाइनल में मेरा 30 हो गया. टाइम मुझे लगा 10 सेकेंड्स. अब एक्सेलरेशन का अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू डालूँ, v - u अपॉन टी, इट विल बी कमिंग आउट 30 - 60 अपॉन 10. इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा -30 अपॉन 10, तो 0 से 0 कैंसिल, मेरे पास आएगा -3. सो जब भी आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, जब भी आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, तो वो एक्सेलरेशन ना करके वो क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन. सो ध्यान दीजिएगा, द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन आर सेम, a = v - u upon t, but the value for acceleration comes out to be positive, whereas the value for retardation comes out to be negative. इसलिए रिटार्डेशन का दूसरा नाम क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डीसिलरेशन. Okay, so to wind it up, what we say is retardation is when the velocity is reducing. So we know that when the velocity is increasing, it means acceleration, and when the velocity is reducing, it means retardation. And if you go mathematically, the value of retardation is coming out to be negative because of obvious values. अगर आपने अभी एक न्यूमेरिकल के थ्रू देखा कि
एक्सेलरेशन नेगेटिव कब आता है? जब आपकी फाइनल वेलोसिटी कम होती है और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कम आती है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, जब वेलोसिटी रिड्यूस होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल गाड़ी 60 पे चल रही थी, अब वो 30 पे चल रही है, यानी कि 60 टू 30 क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है, और वेलोसिटी कम होने पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है या फिर रिटार्डेशन होता है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन का, थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गो थ्रू दिस वेरी क्लियरली, नोट्स अच्छे से बनाइए, कोई पॉइंट में कन्फ्यूजन होता है डू लेट मी नो। सो अभी हमने क्या क्या कवर किया? अभी हमने बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ वेलोसिटी कवर किया है, ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, कंडीशन देखा हमने कि वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू कब कब सेम रहती है। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन देखा, ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, किस रेट में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या बढ़ रही है वो क्या कम हो रही है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट एक्सेलरेशन इज़ ऑल अबाउट। एंड एसआई यूनिट्स भी देखा, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, बट एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमने ये देखा कि एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करना है और उसको डिराइव भी कैसे करना है। सो ये सारा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे, अच्छे से आप स्टडी करेंगे, देन इन द कमिंग क्लास वी विल बी डूइंग मच मोर अबाउट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी विद हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड सम डेरिवेशंस. So for as of now, I'm just wrapping it up, revise it, and make proper notes of it. Okay. So thank you so much, everyone, and take care.